آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان کی فریجیلٹی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بلوچستان کو بیٹل فیلڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ بلوچستان کی خبر بڑی ہے. اور ایسے میں اگر یہ کہہ دینا کہ 100% شیورٹی ہے، اب بالکل بھی نہیں. یس، وی آر ان اسٹیٹ آف وار، وی آر ان اسٹیٹ آف کانفلکٹ. ہم لوگ لڑیں گے، ہمارے ریزالو میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے. آپ بلوچستان کے لوگ سن لیں، جیسے ہم نے ریزالو دکھایا تھا کہ احتجاج کے نام پہ آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا منہ پہ سامنے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. وہ ہم کیوں تھکیں؟ وی آر اسٹیٹ آف پاکستان. ہم تھکیں گے نہیں. ہم اگر چاہیں نا آج پارود سے لے کر یہ سبی سانگان سے لے کر سارے لوگوں کو کہیں اس طرف آ جائیں کوئٹہ کی طرف اور کیمپس لگا دیں، تو وی کین ڈو اٹ، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیسٹ نمبر ہے ایک سال میں 1500+. بشرا سر، اس میں جو اسلحہ استعمال کیا دہشت گردوں نے، اس کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ یہ امریکن ساختہ تھا. آیا یہ امریکن ساختہ استعمال کیا گیا اور کس طرح ان تک پہنچا؟ دیکھیے، ہر قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب یہ وڈرال ہوا ہے افغان فورسز کا، یو ایس فورسز کا جو وڈرال ہوا ہے نیٹو کا، اس کے بعد اٹ واز پلان کہ یہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ 30 سال تک ادھر جنگ لڑے گی، اپنی حفاظت کرے گی. وہ تو 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے. اس 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو کے یہ جتنا بھی اسلحہ ہے یہ مارکیٹ میں پھیل گیا، اور ان کے آقاؤں نے ان کو خرید کے یہ والے نائٹ گیجٹس بھی دے دیے، یہ اکوپمنٹس بھی دے دیے، اور وہ اکوپمنٹس ان کے پاس موجود ہیں. اور پھر افغانستان کی سرزمین آج بھی بشیر زیب افغانستان میں موجود ہے، آج بھی رحمان گل افغانستان میں موجود ہے. یہ سارے لوگ آج بھی اللہ نظر افغانستان میں ہیں. تو وہ سرزمین جو وعدہ کیا تھا آپ نے افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے، میں کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یو پرومسڈ ود دی ورلڈ یور لینڈ ول بی ناٹ یوزڈ بائی اینی ٹیررسٹ فورس اگینسٹ اینی اسٹیٹ. بٹ انفارچونیٹلی آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور ابھی ہمارے پاس انیشیل اطلاعات ہیں، ڈیٹیل رپورٹس آئیں گی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں ان کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. تو لہٰذا یہ ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس پہ شک نہیں کہ انہوں نے جو گیجٹس ہیں وہ زیادہ وہی استعمال کریں. بلوچستان میں یہ جو اس وقت جو واقعات پیش آئے ہیں مختلف علاقوں میں، آپ نے ذکر کی کہ 45 نیوٹرلائز ہوئے ہیں، تو ان میں فیمیلس کتنی تھی جو مارے گئے؟ دیکھیے، this question is not important to me. Why? Because when you are a serious journalist, I'm sorry for that. جو ٹیررسٹ ہے نہ اس کا کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کا کوئی صنف ہے، تو یہ کوئی جینڈر نہیں ہے. اور پھر یہ جو بلوچ کرتے ہیں، ایک طرف بلوچ عورتوں کو مارتے ہیں، دوسری طرف بلوچ خواتین کو جنگ میں ایندھن بنا رہے ہیں. لعنت تو ایسی بلوچیت پر. کہیں ہماری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بلوچ کی تاریخ میں اس طرح کی ہماری کوئی تاریخ تھی؟ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح اپنے بہوٹوں کو مارا ہے، عورتوں اور بچوں کو مارا ہے؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. ان کو بلوچ کہنا، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ بلوچ دہشت گردوں نے. بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کوئی قوم ہے ادھر، اس کو کوئی پشتون دہشت گرد کہتا ہے؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز اے ٹیررسٹ، اس کا جو بھی جینڈر ہو. میرا سوال آپ سے کہ آپ نے تو 145 بتا دیا کہ ٹیررسٹ مارے گئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کو کتنا لاس ہوا ہے اور سویلین کتنے مارے گئے، اس میں بچے اور خواتین کتنے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ کل کتنا یوٹیلائز رہا؟ دیکھیں، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہمارے 17 لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے، جس میں پولیس اور ایف سی شامل ہیں، اور ایک ہمارے جو نیوی کا اہلکار ہے، یہ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور سویلین ہماری جو کیجولٹیز ہیں وہ 31 ہیں، اور اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا وہ سیف سٹی کے حوالے سے تھا.
सेफ सिटी कोयटा आपको पता है कि क्रॉनिक किस्म का पुराना प्रोजेक्ट था, हमने आके उसको बहुत इम्प्रूव कर दिया है पेफ्टैक ने और सेफ सिटी ने, हमारी बहुत ज़्यादा उस पर सपोर्ट मिली है हमें। सेफ सिटी आपको आपके लिए लड़ता नहीं है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो इन्फॉर्मेशन सेफ सिटी ने हमको प्रोवाइड की। और फिर आपने ये भी देखा कि उन्होंने सेफ सिटी कैमराज को भी निशाना बनाया, कि वो जहाँ गए उन्होंने सेफ सिटीज़ कैमराज को सबसे पहले निशाना बनाया, तो वो उनके लिए एक थ्रेट था। तो सेफ सिटीज़ अपना काम करी और आपके लिए कि हम 8 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के 30 जून से पहले तक इंशाल्लाह ताला अपने सेफ सिटीज़ कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। इरफान सईद सर, आपने बात की कि 145 जो है वो देखना ये कि सर नैरेटिव्स की आपने बात की, आप गवर्नमेंट काम कर रही है, नौजवानों को रिलीज कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ जो अरसे से जो ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, उनकी जो उनको सिंपैथी मिलती जा रही है पब्लिक से, वो भी एक बड़ा एक अहम इशू बनता जा रहा है। अब कल का वाक़या आप देखें, कल उनको लखपास से मोटरसाइकिलों पर चल कर नहीं आए थे या किसी ऐसे रास्ते से नहीं आए, वो ये इसी सोसाइटी से, इसी कोयटा शहर के अंदर से आए। ये जो पब्लिक की जो सिंपैथी उनको मिलती जा रही है और उनका जो नैरेटिव जो है उनका मजबूत होता जा रहा है, हम इस चीज़ पर कहाँ खड़े हैं? आपने बहुत दुरुस्त समत में इरफान साहब निशानदेही की है। बात यह है कि थोड़ा सा पीछे चले जाए, 18 ऑनवर्ड्स जिन लोगों ने अपीजमेंट की, जिन लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, जिन इदारों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने तो, इदारे ने तो अपने वाले को सजा दे दी। और जिस पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह काम किया कि जहां टीटीपी की सूरत में भी किया और यहां पर भी किया, और उस अपीजमेंट का नतीजा हमेशा ये होता है कि जब जब आपने अपीजमेंट की है और इसी तरह का प्रोपेगेंडा कि जी ये एफसी की चेक पोस्टें ख़त्म कर दें ताकि लोगों को फ्री रन मिल जाए, ये आपके सामने नहीं हुआ, ये आपके सामने यहाँ से एफसी की चेक पोस्टें नहीं हटाई गई, यहाँ आपके सामने टेररिस्ट को दोबारा फलने फूलने का मौका नहीं दिया गया। तो उस अपीजमेंट की सबसे बड़ी, आज का जो राइज है उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो 18 के बाद की अपीजमेंट है। क्या बलूचिस्तान के लोगों को नहीं याद कि 18 का जो इलेक्शन था, हम खुद सब आप कवर कर रहे थे और हम कंपेन कर रहे थे, क्या वो सबसे पीसफुल इलेक्शन नहीं था? किसी एक जगह पे मुझे बताएं कि जहां पर कोई वाकया हो, इक्का दुक्का वाकयात के अलावा। सो ये अपीजमेंट जो है ये हमेशा रियासत के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। आप आज से ना देखिए, बलूचिस्तान के केस में आप स्टार्ट करें सिंस 1948 कि जब जब आपने अपीजमेंट किया उसके बाद आपको सिला क्या मिला है। Look how they responded after your appeasement. The state has to decide now. There shouldn't be any appeasement to those who took arms against state of Pakistan. It should be clear-headed. और हम आके कुछ साल बाद दोबारा अपीजमेंट में चले जाते हैं। दूसरा जो पब्लिक सिंपैथी है, let me tell you very honestly, Irfan, I have received calls from Job to Gwadar. Public in large बहुत कंडेम कर रही है इस दहशतगर्दी के वाकयात को। ये कौन सी बलोचियत है, जाके बैंक लूट लो, मोटरसाइकिल छीन लो, लोगों के साथ लूटमार कर लो, इससे कौन खुश होगा? पब्लिक इज नॉट विद देम, फेयर फैक्टर इज विद देम। दिस इज द फेयर फैक्टर। क्या इसी सरेआब में, डोंट यू रिमेंबर कि जब हमारी डेटरेंस अपनी पीक पे थी तो यही लोग जो है वो पाकिस्तान का झंडा डैशबोर्ड पे रखे बगैर बाहर नहीं निकलते थे। The time is coming. The only problem, once again I say, the only problem is narrative, and the second problem is this operations in grey. This operation is grey is the biggest problem for us. But we have the solutions. We have the solutions, and you will see कि इंशाल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये जो सिंपैथीज है ये रियासत पाकिस्तान के साथ है लोगों की, दहशतगर्दों के साथ। इट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज। और उस स्मॉल परसेंटेज के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वी हैव आइडेंटिफाइड यू, वी नॉट लेट यू गो सो इजीली। ये जो लोग मारे गए हैं 145, मैं बार बार आपके तवज्जुह से मीडिया में ये कहता रहा कि फैमिलीज हमें इन्फॉर्म करें कि कौन BLA के साथ है। जिन फैमिलीज ने इन्फॉर्म किए उनके लिए तो हमारे पास सिंपैथीज हैं,
बट अब उनके लिए सिंपैथीज कोई नहीं है, जिनकी फैमिलीज के बच्चे जो है वो आके इधर मासूम लोगों का खून बहाए और वो मजे से कारोबार करते फिरे। हार्ड स्टेट है, हार्ड गवर्नमेंट है, वी विल नॉट लेट देम गो इजीली। ईसा इनिशियल खबर यही थी, उन्होंने खुद भी एक वीडियो दी थी, लेकिन उसके बाद जब आखिरी बातचीत उनसे मेरी हुई लेट नाइट मेरे कोलीग्स की आखिरी जो बात हुई, तो उसने कहा कि मैं एक सेफ जगह पे हूँ और मैं उनके जंगल से आज़ाद हो चुका हूँ, और उसके बाद उनसे रब्ता इस वक्त तक नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वहाँ पर अभी भी कॉमिंग और स्क्रीनिंग ऑपरेशन और उनका ताकुब का ऑपरेशन चल रहा है। लास्ट कॉल वाज कि आई एम सेफ विद माय फैमिली। सो जैन तो आप जिस पॉलिसी पे तहकीक कर रहे हैं, ये 2013 और 15 के दरमियान हमने देखी, जब नासिर इंजवा साहब कमांडर साहब वानी साहब से आप जाता थे, तब भी पुरअमन हिंदुस्तान के नाम से इस तरह का तय किया है, तो उसको आप इस नज़र से देखेंगे, आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे? जैन वो पुरअमन बलूचिस्तान तभी हुआ कि जब आपने IPOs किए, आपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए, जब उनको खौफ मिला, तो खौफ के बाद हमने दरवाज़ा एक खुला रखा, आज भी हमारा वो दरवाज़ा खुला हुआ है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, दिस डिसीजन हैज़ टू बी ऑन द बैटल फील्ड। जब आप बैटल फील्ड में तगड़े होते हैं तो वो फिर ये दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। वो पुरअमन की पॉलिसी जब आई थी तो उस वक्त आई थी कि जब आपने उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशंस किए, व्हेन दे फेल्ट कि दे आर नॉट सेफ इन दीज माउंटेन्स, अपने हेवंस में वो सेफ महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, सो दे केम बैक। उसमें से कितने वापस चले गए, आई हैव द लिस्ट। सो वो आज भी हम वो दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, हालांकि हम TTP के मामले में वो दरवाजा हमारा नहीं खुला हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड नैरेटिव जो 30 साल से पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप में, पाकिस्तान के जुडिशरी में, पाकिस्तान की मीडिया में ये कंफ्यूजन फैलाई गई है। आप देख लें नेशनल एक्शन प्लान, मैं उसको सेकंड बड़ा डॉक्यूमेंट मानता हूं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कंसेंसस था उसमें आपने बलोच मिलिटेंट्स को जो है वो एक अलग से ट्रीट करना शुरू कर दिया। जो वो मिलिटेंट्स थे कि जिनको जो मजहब के नाम पर, जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, इनको हमने नाराज बलोच डिक्लेयर कर दिया। व्हाट अ कंफ्यूज नेशन वी आर वी फाइटिंग अ सीरियस वॉर? सो दैट वाज, उसका नतीजा तभी था कि फर्स्ट यू हैव टू लाइक मक्का फतह करना पड़ता है, तो उसके बाद आप माफी का ऐलान किया जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन इरफान राणा। सर ये मुझे बताएं, बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द होटल में आए, उनकी खबरें भी चली, सोशल मीडिया भी चले, थानों को उन्होंने आग लगाया, इसके चेक पोस्टों पर उन्होंने हमला किया, 14 शहर में उन्होंने कब्जे में लिए और बै वक्त सुबह 6 बजे कार्रवाइयाँ शुरू। तो सर ये क्या हमारे फैलिया का कोई शहर पे कब्जा नहीं हुआ। कोयटा में कल मैं खुद फिरता रहा, क्या मैं नहीं फिरा था कोयटा में? आप भी फिरते रहे। अच्छा जी, अब गुजारिश है ना, देखिए 1-2 जगह पर आना, वहाँ पर आकर हमलावर होना, और उस हमलावर में, अब थाने की आपने मिसाल दे दी, उस थाने के साथ 11-11 साल के बच्चों को भी साथ लेकर आए थे, जबरदस्ती लाए थे। तो क्या वो मेरा पुलिस वाला और 11 साल के बच्चे को मार देता? तो उसके पास 2 ही ऑप्शन थे ना, IG पुलिस साहब इज सिटिंग हियर, 11 साल के बच्चे को ब्रूटल हो जाता, दहशतगर्द हो जाता। ये तो दहशतगर्द नहीं है, इससे यूनिफॉर्म पाकिस्तान की पहनी हुई है, और वो गलियों से 11-11 साल के बच्चों को मोटरसाइकिलों पर बिठा के आगे उठा के ले आए, जस्ट फॉर अ ह्यूमन शील्ड। तो व्हाट वाज द ऑप्शन? सो आपने पूरे ऑपरेशन का वो देखना है, कोयटा का भी एक हिस्सा, बाकी कोयटा तो इट वाज अ नॉर्मल लाइफ। 10 जगह पे मार भी भगाए। हाँ, और किलिंग्स कोयटा में उनकी 5 से 10 लोग कोयटा में मारे गए। PTC में उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, क्या घुस पाए? रेड जोन की मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं जिसपे रेड जोन के हमारे शहर में जो जख्मी है और उसको हम हाईएस्ट अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करें, फायरिंग की उस सुसाइड बॉम्बर पे, जिसकी वजह से वो गाड़ी हिट नहीं कर सका।
सो ये एक सर्कमस्टांसिस को आप अंडरस्टैंड करें, ग्रे में ऑपरेट करते हैं और वो जगह ढूंढते हैं, सॉफ्ट बैलीज ढूंढते हैं, सॉफ्ट बैलीज की तरफ आते हैं और वो सॉफ्ट बैली पे अटैक करते हैं. बट लेट मी श्योर यू, थ्रू यू आई एम अश्योरिंग होल पाकिस्तान, एवरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, मार्क माई वर्ड्स, इंशाल्लाह ताला ये हक और बातिल की जंग है, पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा ये जंग. Sir, Fareed is requesting for last जी question. प्लीज फरीद साहब. सर क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने देखा कल शाम 5 बजे तक हजारगंजी से वो बैंक लूटते रहे, वहाँ किसी से बिजनेस सामने नहीं है. दूसरा जो सिटी स्कूल में आपने मेरे दहशतगर्द उनका क्या हुआ? देखिए, एक तो ये कि कोई एक बैंक भी नहीं लूटा गया. एक बैंक के जो डीप लॉकर्स होते हैं उनको स्पेशल एक नाम दिया जाता है, सॉरी मुझे, जो लॉकर्स होते हैं उनके नीचे सेफ लॉकर्स होते हैं या व्हाटएवर, एक बैंक भी नहीं लूटा गया. यस, बैंक पे उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर मारा है, जो ही पुलिस जाती है वहां से भाग जाते हैं, और उन गलियों में सर आपने नहीं देखा हो. और दूसरा सवाल आपका किस हवाले से था? सिटी स्कूल में वो कॉमिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया, कैन नॉट टेल यू ऑन द माइक व्हाट वी आर डूइंग. Sir, last में वो वीडियोस आप ये तीनों गवादर ब्रेक वाली जो video दिखा है, दें, वो play कीजिए. वो गवादर वाली वीडियो प्ले कर दें, ये पूरे पाकिस्तान को दिखाएं, और ख़ास तौर पे ट्विटर सरदार लाजमी देखे कि ये बलोच औरतों के साथ क्या करते हैं, और आप जाए नमाज पे बैठ के उनके लिए दुआएं गवादर की करें. जो जख्मियों वाली वीडियो है वो ये देखिए, दरवाजे पर कोई मारा, कोई अंदर आया, ये दस्तूर भी लग गया, हमारा बीवी ने पुनः शरीफ उठाया, फिर कहते हम मुसलमान हैं, तुम्हारे से माता हमारा एक बंदा तो शॉर्ट हो गया, हमारा बैंक को भी लग गया, और हमारा दूसरा रिश्तेदार भी उसको भी लग गया, हमारा बहन का बेटा, हमारा एक चाचा का बूढ़ा था, बहुत सीरीज है, सरकारी सीरीज है, شهید مسعود کو دل سے کاز نامت کی مرض نامت کی یہ نازل شہید مرض پیش ہم لوگ مطلب مسلمانوں کو پہنچے اور نہیں ایسا تو آپ کو فائدے کا آواز بس اس کو بند. جاتا ہم لوگ یہ ہے دہشت گردوں کا اصل چہرہ.